Hello everyone, welcome back to my online class. Now I am presented once again uh, the same chapter of English literature. The already you know that in previous video I taught you about chapter number 5. I can be a pal. So in through this video, this chapter number 5 to be continued. Chapter number 5, and already you know that this is a poem and the title of this poem is what? I can be a pen. I can be a pen. And this is the second part. This is the second part of this poem. I can be a pen. Pen means what? What is the meaning of pen? Pen means friend. Pen means friend. And what is the name of this poet? Name of the poet of this poem, I Can Be a Pal? Christine Smith. Poem, poet. Poet. The name of the poet is Christine Smith. So students, in the first part of this poem, I taught about qualities of a good friend, and I taught the meaning of each line of the poem. Now, through this video, we will learn about summary. Learn about summary of this poem. Summary जानेंगे. What is the summary of that 8 lines? उस 8 लाइन का summary को अगर हम लिखना चाहें तो how can we write? Because this poem is about a real friend. So what is the quality already we have learned the qualities of a good friends. So through already I taught through this poem, poet कहता है कि the poem is about the quality of a good friend. Summary पहले जानिए SUMMARY. समरी अगर लिखना है, अगर इस 8 लाइन को हम लोग को एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है तो हाउ कैन वी राइट दैट इज कॉल्ड व्हेन वी राइट इन अ पैराग्राफ ऑफ पोएम दैट इज कॉल्ड द समरी. हम लोग पोएम का समरी लिखें तो क्या लिखेंगे? तो इन दिस पोएम पोएट सेड दैट the quality of a about the qualities of a good friends. The poet said that a poet कह रहा है, poet चाहता है कि वो दोस्त बने. The poet wants that he can become our friends. अब इसमें poet बोल रहा है कि वह जो है एक दोस्त, हम लोग का दोस्त बनना चाहता है. अब वो दोस्त कैसे बनना चाहता है? तो in each line already he narrate his feelings. उसने अपना सारा फीलिंग्स को हर एक लाइन में शेयर कर दिया है. The poet said that he can become your friend or become our friend by smiling at smiling at us. मतलब वह जो है, मैंने बताया था कि वह जो है हम लोगों का दोस्त हो सकता है. हमारे जब वह दोस्त हो सकता है तो वह हमारे चेहरे पर मुस्कान ला सकता है. एंड saying please and thank you, वह जो है यह भी कहता है कि he can be a pal by smiling at us, and he saying that please and thank you. मतलब वह यह भी कह रहा है कि अगर वह दोस्त बनता है तो अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो गलती नहीं, अगर हम उससे कुछ हेल्प करते हैं वो थैंक यू भी बोलेगा. अगर उससे कुछ हमारे
हमारी हेल्प की जरूरत है तो हेल्प के बदले में वह हमें प्लीज भी बोलेगा, थैंक भी बोलेगा। तो यह वह कह रहा है। एंड he said he can be our friend when we are lonely। वह हमारा दोस्त हो सकता है जब हम अकेले हो। एक वर्ड आ रहा है lonely, LONELY। lonely का मतलब होता है अकेला। जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है, जब हमारे हर रिश्तेदार हमसे दूर, और अगर हम जब अकेला महसूस करें, थोड़ा बोरिंग फील करें, उस समय वह हमारा दोस्त हो सकता है। एंड he can share the company with us। वह अपनी कंपनी सहयोग हमें दे सकता है। वह हमारे चेहरे पे मुस्कान वह ला सकता है। एंड he said he can be our friend when we are lonely and said जब हम उदास हैं, जब हम लोग के पास, जब हम लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, तो poet कहता है कि on that time he can be our friend। वह हमारा फ्रेंड हो सकता है। when we feel lonely and sad। when he can be our friend when we are in difficulty। जब हम लोग किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो वह हमारा दोस्त हो सकता है। तो ये जो है फ्रेंड्स, पोएट जो है इसी पोयम में बता रहा। फिर वह आगे क्या कहता है? वह कहता है कि when no one else be friend us। अगर कोई हम लोग का फ्रेंड नहीं है तो on that time he can be our friend। वह हमारा दोस्त हो सकता है। when no one be with us। जब कोई हम लोग के साथ नहीं है तो वह हमारा दोस्त हो सकता है। जब हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं है तो वह उस समय हमारा दोस्त बन सकता है। he said he can be honest and kind। वह सिर्फ दोस्त ही नहीं बनेगा, वह कैसा दोस्त बनेगा? तो एक ईमानदार और एक दयालु दोस्त बनेगा। वह रूडली बात नहीं करेगा, क्रुएलिटी को नहीं दिखाएगा। वह हमेशा माइंड रहेगा। माइंड मींस मिलजुल कर, मिलनसार जो है, हमेशा सॉफ्ट स्किल में रहेगा, अच्छे से बात करेगा, वह रूडली बात नहीं करेगा। वह ऐसा फ्रेंड बनना चाहता है। एंड द पोएम बाय आस्किंग व्हाट यू थिंक। नाउ इतना सारा डिस्क्राइब करने के बाद, डिस्क्रिप्शन देने के बाद, एट द एंड ऑफ दिस पोएम पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि दिस इज माय फीलिंग्स विद ही शेयर विद अस। यह उसका फीलिंग है, अनुभव है, और वह हम लोगों के साथ शेयर कर रहा है। अब उसके मन में जो भी था, ऑलरेडी ही शेयर विद अस, ही हैज शेयर विद अस, उसने हम लोगों के साथ शेयर कर दिया। नाउ अब एट द एंड ऑफ दिस पोएम पोएट इज आस्किंग टू अस। पोएट हम लोग से पूछ रहा है कि मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। एंड नाउ what do you think about it? And now what do you think about it? It means what do you think about friendship? अब आप इस फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या सोचते हो? मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। पोएट ने कह दिया है कि मैं हर तरफ से आपका मित्र हो सकता हूँ। किस किस समय आपका मित्र मैं बन सकता हूँ, किस कठिनाइयों, आपकी कठिनाइयों पर मैं आपका मित्र हो सकता हूँ। ऑलरेडी he said that and he can prove himself by friendship when he can be a friend with us। जब वह फ्रेंड हम लोग का बन सकता है तो वह कैसा फ्रेंड साबित हो सकता है, उसने यह सारा बता दिया। एंड once again I repeat this thing, he said that at the end of this poem he is asking कि what we think about it। अब उसके फ्रेंडशिप के बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं वो हम लोगों पे छोड़ दिया। अब आप क्या सोचते हैं, मुझे जब बताना था मैंने बता दिया। सो फ्रेंड, दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, एंड आफ्टर दिस we will write some rhyming pairs। okay, RHYMING। अब हम लोग इस अकॉर्डिंग टू दिस पोएम वी विल राइट सम राइमिंग पेयर्स।
देखेंगे सेम साउंड की तरह पोएम के से ही पोएम से चूज करके वी विल राइट द व्हाट वी विल राइट राइमिंग पेयर्स ओके। सो अगर हम लोग हर एक लाइन देखेंगे आपको लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू विल रीड दिस पोएम each and every line with each and every word first all of you will read this poem इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है फिर इसके पोएट का नाम याद करना है ओके। सो नाउ I am going to write some rhyming which we can write the rhyming pairs from this poem from each line ओके। देखते हैं अगर कौन सा rhyming pair हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग पहले लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे तो लिख सकते हैं यू ब्लू एंड और फिर क्या लिख सकते हैं काइंड बाइंड इसके बाद और क्या लिख सकते हैं लाइन में फर्स्ट राइमिंग पेयर इज यू ब्लू सेकंड राइमिंग पेयर इज काइंड बाइंड नंबर 3 यू टू एंड नंबर 4 day say so these are rhyming pair these 4 are rhyming pair of this poem first you blue kind bind you two day say so students now when we talk about the exercise of this poem so we will do the exercise of this poem later but if all of you have book so you can see that in your textbook after completing this poem when you come the page number 37 when you come the page number 37 some fill in the blanks are there so you can do it yourself okay if you have some difficulty while you are fill in the blanks you can ask me okay that's all thank you